Hello everyone, welcome to chemistry class. Here is Narayan Berwa, physics chemistry. Today we will study about the solid states. Our objective for this lesson is on completion of the chapter, you will be able to classify the different solids, different types of solids and their properties and different ways of packing, define related terms like isotropy, voids, etc. And you will be able to solve numerical problems based on packing efficiency and density and other some reasoning questions. Before starting to the topic, I want to emphasize on the importance of the topic for a chemistry student. See some examples and think about the questions or conditions for solid state. Solid. Think life without solids. Why is the study of solids is essential for a chemistry student? Think about use of a particular solid for particular purpose and not for other. For example, pencil जिसका use सिर्फ लिखने के लिए यूज था उसमें भी selective erasable things, erasable notings. While this sharpener should have always stainless steel for cutting. Similar work for similar works, see this knife, it also have stainless steel. So different materials are used for different purpose. See now, we will try to cover following topics: solids, classifications of solids, lattice and unit cells, packing in metallic crystals, voids, packing frictions, density. But in current session, we will study only two topics: solids and their classifications of solids, and some problems based on that may be asked in your board exams. Density. Now see solid state. Solid state, as you know already, that as we all know, the solid state has some basic features like following. We will not go in detail for these now, but we will just discuss the important points according to the CBSE board exam and as per the syllabus to CBSE board exam. See, I'm just explaining a few features of solid state. These are definite. These have definite volume and shape. Solid always have definite volume and shape. And solid uh, have regular arrangement of particles, strong intermolecular forces, kinetic energy, rigidity of solids. Now see the classification of solids. There are two types of solids: a crystalline solids and an amorphous solid. A crystalline solid is composed of one or more crystals. Each crystal has well-defined and ordered structures in three dimensions for large range. See, this one is large range for large range. For example, you can see crystals of sodium chloride and sucrose in your kitchen. See here, this one is the regular pattern. Regular pattern you are able to see here. This one is regular pattern over large range is showing for crystals, while this one is irregular pattern for large range. You can see easily here the here these are irregular pattern, or this one is for amorphous solids, while figure A is for crystalline solid and figure B is for amorphous solids. Here say an amorphous solid has disordered or irregular structure. It lacks the well-defined arrangement of basic units found in crystals. For example, see glass is an amorphous solid. Glass also seems to be solid, but it's
Yeah, amorphous solids. Amorphous solids are also called super cooled liquid. It means we can say these are the liquid, but they are very cold, so they are seems to be solid. See some differences between these two shape. First, crystalline solids and amorphous solids. Shape. Definite characteristics for characteristic with geometrical shape for crystalline, while irregular shape is an important parameter for amorphous solid. See, another point of difference is melting point. Crystals melt at a sharp and characteristic temperature. It means ice will melt at 0 degrees Celsius, means it will melt at 0 degrees Celsius. It will immediately convert into water. But see, you will not find such happens in the lab because there is some another factor, which one is uh, latent heat. So I think you may question about like this. So latent is also there, but see the point is here. In amorphous solid, gradually soften over a large range of temperature. Means, for example, if a glass is melt at 60 degrees Celsius, it's not the 60. It will start at 50, and it will becoming soft and soft, and then over a large range it will convert into liquid. So it's the 60 is for a uh, assumption only. See another property, cleavage property. Cleavage means कट करना. जब हम काटेंगे इन दो को, क्रिस्टल्स को जब काटा जाता है तो शार्प एज टूल के साथ, तो दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस. द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ. इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये बिल्कुल प्लेन और स्मूथ होते हैं. While in amorphous solid, when cut with a sharp edge tool, they cut into two pieces with irregular surface. आप किसी भी पॉलीमर्स का एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं. पॉलीमर्स को आप काट के देखना. फॉर एग्जांपल पीवीसी पाइप को आपने काटते हुए देखा होगा. सी देयर, it will result into irregular surface or some blunt surface. See another point of difference, heat of fusion. Crystalline solids have a definite and characteristic heat of fusion. ऐसा क्यों है? Because they have a sharp melting point. While in this, here we see that they do not have definite heat of fusion because they do not have large range of a sharp range melting point. They have large range of melting point. See another difference, anisotropy. This one term is the new, so I have put some figure here for this purpose. When we encounter some new words, I will try to solve that immediately. See here, anisotropy. An word is for absence. Iso word is for same. Same and absence. See here, यानी ऐसी प्रॉपर्टी विच, यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ अच्छा समझ में आएगा. एमोर्फस सॉलिड में आप देखिए, आइसोट्रोपिक इन नेचर मीन्स some properties calculated through this direction or through this direction. चाहे वो ऐसे कैलकुलेट करो चाहे ऐसे कैलकुलेट करे, वो प्रॉपर्टी सेम आए, रिपीट हो, एक जैसे ही हम हो, प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है, then it is called isotropic in nature. But ऐसा कहाँ मिलेगा? amorphous solids have such property, while crystalline solids shows an isotropic in nature. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होगा? एनाइसोट्रॉपी मिलेगी. आप ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सी हियर, you are measuring, for example, refractive index is measuring through this direction, A to B. See here, something different environments through which
light is passed. Or see here, different environment is of atomic structure is there. See here, it is cancelled immediately. Something is positively charged, then negatively charged. Here it is passing through a positively smaller r cations, so it is passing nearby cations. Also, and having same environment, so it will show a different property. So these two directions are showing two different properties. See here another nature. So आपको अभी क्लियर हो गया होगा नेचर से जाने पहले कि एनआइसोट्रॉपी क्या है और आइसोट्रॉपी क्या है. आइसोट्रॉपी मीन्स सेम, जिसमें प्रॉपर्टी को किसी भी डायरेक्शन से मेजर करें. एमोर्फस सॉलिड्स में हम किसी भी डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो वो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा. सी यहाँ हियर ट्रू सॉलिड, ये जो होते हैं ट्रू सॉलिड्स होते हैं. कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड. जबकि इनको सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं और सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है. जैसे कि मैंने क्लास के लिए एग्जांपल दिया. ऐसा क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कोल्ड लिक्विड. क्यों कंसिडर किया जाता है, या इसका एक दूसरे फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, class of historical buildings is wider, broader at base than upper side. ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज these are super cold liquid and at high temperatures these may have higher fluidity. Fluidity से क्या होगा, जो अप साइड से कुछ ये इनके solid materials will flow down side, so the base will become some broader. See order of arrangement. The main difference between crystalline solids and amorphous solids. They are long range order, regular in long range order, or regular may be at short range order. Types of crystalline solids. अभी आपने देख लिया था इससे पहले कि सॉलिड्स कितने टाइप के, तो हमने देखा कितने टाइप के थे, दो टाइप के. मेनली कितने टाइप के? दो टाइप. दो में से कौन थे? एक थे अमोर्फस, दूसरा था अमोर्फस एंड crystalline solid. We have seen these two different types of solids, but हमको ये पता है कि हमारे सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अमोर्फस सॉलिड्स नहीं. सी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अब हम सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, अमोर्फस सॉलिड्स को यहीं लीव इट कर दीजिए. ठीक है. इसके बाद फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड. अभी सॉलिड्स के आपने दो टाइप देखे थे, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन. उसमें से हमारे सिलेबस में क्या है? केवल और केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है. और तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आगे चलने पे हमको कितने टाइप के मिल रहे हैं? फिर से 4 टाइप के. कौन से हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड. एज द नेम सजेस्ट, कुछ तो है ये, और ब्रैकेट में कुछ यहाँ पे लिखा भी है. देखिए इनमें कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है, और कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है. ये अट्रैक्टिव फोर्सेस आल्सो डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल्स टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. चलिए फर्स्ट वन मॉलिक्यूलर. नाम एक बार फिर से देख लीजिए. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड, आयनिक, कोवेलेंट. एक एक एग्जांपल यहीं पे बता देते हैं. मॉलिक्यूल्स कौन बनाते हैं? सीधा से एग्जांपल आप समझ सकते हैं वाटर का. H2O एक मॉलिक्यूल है, तो H2O का एक सॉलिड फॉर्म आइस यू कैन इजीली से
Metallic, तो so many examples are there. Iron, aluminum, so many examples are there. आयनिक का आप टेबल सॉल्ट समझ सकते हैं इजीली. Covalent, you earlier you have studied in class 10 diamond and graphite as covalent solids. See, molecular solids. Molecular solids में देखेंगे आप, a molecular solid is a solid that consists of atoms or molecules held together by intermolecular forces. यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट होगा इसमें मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नोट कर लीजिए. इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं जनरली कौन से होते हैं? वान डर वाल्स फोर्सेस. कौन से होते हैं? वान डर वाल्स फोर्सेस. See these some examples. Carbon dioxide, this one is a molecule. Iodine, iod2 diatomic molecule. Carbon dioxide heteroatomic, ये monoatomic. ये polyatomic, sorry, this one is diatomic but homoatomic. This one is polyatomic, acid, sulfur but homoatomic. You can easily find here these molecules are arranged in this uh, these conglomerate or aggregates, and these are called molecular solids because these are molecules. They are existing as I2 iodine. See here, iodine and iodine are they are bonded and existing like this. See properties of this. सबसे पहले आप देखेंगे तो ये सॉफ्ट होते हैं. कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, वोलेटाइल. सबसे पहले यहाँ पे आप एग्जांपल से ही समझ सकते हैं. आप सल्फर पाउडर देखे होंगे लेबोरेटरी में, या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के फॉर्मेट में नेचुरल में एग्जिस्ट करती है, बट ऑन कूलिंग इट में कन्वर्ट इनटू ड्राई आइस. दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस. सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है, इसको हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं. ये ड्राई आइस है. अब आप समझिए कि सॉफ्ट तो होगी ही, बिकॉज देयर इज वीक वन डर वाल्स फोर्सेज आर देयर. लो मेल्टिंग पॉइंट क्लियरली है बिकॉज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से these are existing as gas. This one is also existing as a gas, carbon dioxide at room temperature, while this one is also may easily convert into liquid or gas, although iodine is existing as solid in at room temperature. Sulfur is also existing as solid in S8 state, but in S2 it may be in gases. डायटोमिक सल्फर गैसेस रहता है. सी तो वोलेटाइल भी है. दीज आर इजीली कन्वर्ट. एक सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें H2O. H2 that one easily water is volatile, ice is volatile. Electrical insulator another things. These are electrical insulator है, poor thermal and conductivity and heat of fusion, बिकॉज इनके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट है, सॉफ्ट है, वोलेटाइल है. सॉफ्ट है तो ये इजीली मेल्ट हो जाएंगे, और इजीली मेल्ट होने पे हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी लेस टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड. क्लियर? सी एग्जांपल्स इंक्लूड सॉलिड. इनके एग्जांपल्स देखेंगे तो सॉलिड नियॉन, और एक एग्जांपल आपने देखा सॉलिड आइस, solid water that is ice, solid carbon dioxide, dry ice that is called dry ice. See metallic soil. Another अगला पॉइंट अपना पहले अभी आपने क्लियर कर, साथ के साथ समराइज करते जाना. हमें चार में क्रिस्टल के टाइप से, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कितने टाइप से? चार. चार में से हमने अभी एक पढ़ा है, कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. सेकेंड वन है मेटेलिक सॉलिड्स. मेटेलिक सॉलिड्स में आप सीधे सीधे एग्जांपल देख सकते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम. दीज आर मेटेलिक सॉलिड्स. मेटेलिक सॉलिड्स में होता क्या है देखिए. A metallic solid is a solid that consists of positive core of atoms held together by a surrounding sea of electrons. इसी को हम मेटेलिक बॉन्डिंग बोलेंगे. ये ध्यान से देख लेना, ये टर्म मेटेलिक बॉन्डिंग आपको कई जगह बार बार मिलेगी.
पी ब्लॉक में फिर से मिलेगी, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में मिलेगी। तो ये मेटलिक बॉन्डिंग मीन्स क्या है, ये पिक्चर्स देख लीजिए आप पास में, ये मेटल आयंस है। मेटल आयंस आर एम्बेडेड इन सी ऑफ electron. That one is called metallic bonding. So these ions are held strongly. ये strongly जुड़े रहते हैं, तो metallic bonding something ज़्यादा stronger होती है। पिछले आपने molecular solids में देखा उस एग्जांपल से। तो obviously अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये very soft to hard हो गए। कैसे हो गए? Soft to hard। Positively charged atomic cores are surrounded by delocalized electrons. सी फिर से थोड़ा पॉज लिया था। वेरी सॉफ्ट टू हार्ड एंड लो टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं जर्मेनियम और इस तरह के सीजियम जिनमें मेल्टिंग पॉइंट, कुछ सोडियम जिनमें कम होता है, दूसरे कुछ और है जिनमें कुछ ज्यादा होता है। आप एक काफी वेराइटी है। These are good conductors of electricity and heat. मेटलिक लस्टर्स होता है, मेलिएबल एंड डिक्टाइल। मेटलिक लस्टर मीन्स शाइन करते हैं, अच्छे से चमकते हैं। मेलिएबल डक्टाइल इन प्रॉपर्टीज को आप टेंथ से जानते हैं। मॉडरेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। अब ये जो चीज है कि ये वैरायटी क्यों इतनी, तो इट डिपेंड्स ऑन, एक पॉइंट यहीं पे बता देते हैं, जो सॉफ्ट टू हार्ड, इट डिपेंड्स ऑन द, ये जो आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने दिख रहे हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अनपेयर्ड होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इसको बॉन्डिंग में हेल्प करेंगे। यानी कि आपको मिलेगा सबसे ज्यादा, जैसे आयरन को आप देख लीजिए तो डी ब्लॉक में आ रहे हैं, डी और एफ मेटल्स कुछ के मेल्टिंग पॉइंट्स कुछ ज्यादा ही हाई मिलेंगे दूसरों के कंपैरिजन में। आगे चलते हैं, इनके एग्जांपल्स आपके क्लियर है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, सिंपल एग्जांपल्स आर दिया है। नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड्स। अभी तक हमने दो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ लिया था, मॉलिक्यूलर एंड मेटलिक। थर्ड वन इज आयनिक। आप थोड़ा सा याद करते जाएंगे। थर्ड वन इज आयनिक। आयनिक एज द नेम सजेस्ट, ये नाम कुछ बता रहा। आयनिक मीन्स जस्ट लाइक आयनिक कंपाउंड। सी दिस वन एग्जांपल, NaCl, आयनिक क्रिस्टल हो गए। An ionic solid is a solid that consists of cations and anions held together by electrical attraction of opposite charge। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड जो होता है एक्चुअल में, this positive cation, smaller one, and this bigger one, anion. These two have opposite charge, so these are attracted strongly by electrostatic force of attraction. और ये these are also attracting nearby other chlorides, and this chloride is attracting nearby sodiums, so they are remains in aggregate. This one is called crystal. अभी इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आप देखिए ब्रिटल होते हैं, दिस वन आर ब्रिटल इन नेचर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, good conductors in aqueous solution और fused state, high heats of fusion। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं रीजन और कुछ बात कर लेता हूँ। ये पहले तो ब्रिटलनेस क्या है। ब्रिटल मीन्स if I apply some pressure here, it will immediately scattered and breaks into so many pieces, not the sharp edge cut, it will give so many pieces in disordered way। यानी कि मैं एक्चुअल में यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करूं तो एक्चुअली क्या होगा, दिस सोडियम will go
in parallel with another sodium that has positive charge. So repulsion create होगा और repulsion से क्या होगा, ये पूरा बिखर जाएगा, ये पूरा बिखर जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। ये स्पेशली आयनिक कंपाउंड्स में मिलती है। अगला हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई हीट्स ऑफ फ्यूजन, दोनों सिमिलर है। ऐसा क्यों है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई हीट्स ऑफ फ्यूजन? तो अब आप देख सकते हैं बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स है इनके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इट रिक्वायर्स सम हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस लैटिस। सो ये दोनों ही ज्यादा है। अब एक और लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये गुड कंडक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन एंड फ्यूज्ड स्टेट। एक चीज पॉइंट यहाँ रह गई, दे आर गुड कंडक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन और फ्यूज्ड स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, ये नोट कर लेना। तो ये एक्वस सॉल्यूशन और फ्यूज्ड स्टेट यानी एक्वस मोल्टन स्टेट दोनों कंडीशन में तो ये कंडक्ट करेंगे बिकॉज देयर आयंस आर फ्री टू मूव। और हियर ये इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से हो रही है, कंडक्ट हो रही है? क्लोरीन एंड सोडियम आयंस आर फ्री हो जाएंगे जब ये मोल्टन स्टेट में होंगे या पानी में होंगे। और इस टाइम पे ये मूव करने के लिए फ्री है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती बाय मूविंग दीज आयंस। इसके पीछे क्या रीजन है? मूवमेंट ऑफ आयन, नॉट द इलेक्ट्रॉन्स। स्पेशली फोकस करना इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ मोमेंट ऑफ आयंस है। बट सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करेंगे, नोट कर लेना, ये यहाँ नहीं लिखा है इसमें, बट सॉलिड स्टेट में ये नहीं करते। क्यों? बिकॉज क्रिस्टल्स में इनके आयंस आर फिक्स्ड एंड नो मोमेंट इज देयर। कोई मोमेंट नहीं होगा तो इधर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए दो चीजें, या तो इलेक्ट्रॉन मूव करे या आयंस मूव करे। ठीक है, तो ऐसा दोनों ही पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अब आप देखिए एग्जांपल्स के लिए कई सारे एग्जांपल्स है। NaCl है, पोटेशियम नाइट्राइड है, लिथियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, these are ionic compounds. Any ionic compound is ionic solid. See last type, covalent solids. ये कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने क्लास 10th में ही पढ़े थे, डायमंड एंड ग्रेफाइट। सी हियर, इनमें जो आपने क्या पढ़ा था कि सॉलिड्स दैट कंसिस्ट ऑफ एटम्स, इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स होंगे, और टुगेदर इन ए लार्ज नेटवर्क और चेन्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनमें सबसे स्पेशली क्या है? दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड। और अभी आपने 3 पढ़े थे, उसमें अभी तक का रिवाइज करें तो सबसे पहला क्या अट्रैक्शन था? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और वीक वन डर वाल्स फोर्सेस। दूसरे में आपने देखा आयनिक बॉन्ड, तीसरे में कोवेलेंट बॉन्ड, एक मेटलिक बॉन्ड फोर्थ वन, ये लास्ट वन है। तो ये फोर्थ वन है आने कोवेलेंट बॉन्ड। एक का मेटलिक बॉन्ड भी था मेटल्स के बीच में। वेरी हाई हार्ड, very hard and high melting point, poor conductors of heat and high electricity or high heats of fusion। यहाँ पे कॉमा समझना, सी दिस वन इज डिफरेंट। एक तो हार्ड होते हैं सारे, जैसे कि डायमंड है, सी दिस डायमंड इज वेरी हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इन सबके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हाई है। और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये समथिंग ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन टू conductivity. Otherwise, all are poor conductors of heat and electricity और high heat of fusion। इनके अब आप हाई मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये सीधा सा आपको रिलेशन आप इजीली बना सकते हैं। अब आप चलते हैं हम समराइजेशन की तरफ। एग्जांपल्स देख लीजिए इसके, कार्बन के कई सारे जो भी आप एलोट्रोप्स देखेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट और अदर एस्बेस्टोस एंड सिलिकॉन कार्बाइड, इन सब में नेटवर्क कोवेलेंट नेटवर्क रहता है एक तरह से, और ये सॉलिड्स। अब देखिए कंपैरिजन, देखिए सबसे बेस्ट कंपैरिजन। सबसे पहला मॉलिक्यूलर, मेटलिक एंड आयनिक, और लास्ट वन कोवेलेंट। मेटलिक के अंदर आप देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो था वो लो था,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसमें भी एक चीज नहीं मिली आपको, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के इस पे। चलिए मैं जल्दी से इसको डिस्कस करके आगे एक और टेबल है उस पर चलता हूँ। तो लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये वेरिएबिलिटी देखिए, लो से समथिंग हाई, देन ये हाई टू वेरी हाई, और दिस वन इज लास्ट वन इज वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर टू मेटलिक, मेटलिक टू आयनिक, आयनिक टू कोवलेंट, किस तरह से चेंज होगा? इट मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज इंक्रीजिंग। अब ये देखिए कैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं मॉलिक्यूलर वाले। ये वेरिएबल हार्डनेस होती है, मेटलिक ऑलवेज मेलेबल होंगे, नॉट ब्रिटल। ये ब्रिटल होंगे बट हार्ड होंगे। ये सी द पॉइंट, यहाँ सॉफ्ट एंड ब्रिटल फर्स्ट वन, और यहाँ पे क्या है, ब्रिटल बट हार्ड। तो यही प्रॉपर्टीज पर बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम्स दे में से क्वेश्चन में से इट इज हार्ड एंड ब्रिटल मीन्स आयनिक, और समटाइम्स इट में से सॉफ्ट एंड ब्रिटल मीन्स molecule. If a question may ask about hard and brittle, then your assessment for the unknown compound is ionic. See, electrical conductivity. These are molecular solids, so इनमें तो चांस ही नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्री, जो कि इनमें नहीं है, वो एक मॉलिक्यूल्स में नहीं रहते हैं। दूसरा या चाहिए आयंस, दोनों ही यहाँ पर नहीं। सी, ये मेटलिक ऑलवेज कंडक्टिंग हो रहेंगे, मेटल्स सारे। नॉन, ये आयनिक में नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टिंग इन लिक्विड, इधर इन वाटर और इन मोल्टन स्टेट। यहाँ पे कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में वेरी हार्ड रहेंगे, ये यूजुअली नॉन कंडक्टिंग। ये कैसे रहेंगे, नॉन कंडक्टिंग। एक एक्सेप्शन है इसमें ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्लास आगे चलते हैं, इस पर कुछ और टेबल है। ये आपकी एनसीईआरटी की टेबल समझिए, इसको एनसीईआरटी बुक से ही समझ लीजिए। मॉलिक्यूलर में भी आप देखेंगे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सब में मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए इसका नाम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। आयनिक में देखेंगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस है। मेटलिक सॉलिड में कर्नल्स ऑफ इन द sea of electrons, kernels means metal ions। और कोवेलेंट में आप देख सकते हैं एटम्स। देखिए सबसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे भी एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, ये जैसे I2 H2, but they are atoms in aggregate, means they are forming molecule। यहाँ पे molecule नहीं बनाएंगे, यही फर्क है। तो ये जो molecule है, तीनों में molecules मिल रहे हैं आपको। और डिस्पर्जन ऑफ लंदन, इनमें सबसे फर्स्ट देखिए, इनमें 3 डिफरेंट कैटेगरी क्यों बनाई, नॉन पोलर। नॉन पोलर मीन्स यहाँ पे कोई पोलरिटी नहीं है। H2 दोनों ही हाइड्रोजन है, सिमिलर एटम्स है, तो कोई पोलराइजेशन नहीं है, प्लस माइनस नहीं मीन्स पोलर। देखिए यहाँ पे प्लस है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन der was force you can say, दिस वन इज द वीकेस्ट। ये तो ये सबसे सॉफ्ट है, उसके बाद ये सॉफ्ट है, और लेकिन ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड वाला हार्ड है। अब देखिए ये सारे इंसुलेटर है मॉलिक्यूलर, वे, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, क्योंकि ये तो वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो ये वेरी लो। ये समथिंग भी हायर देन दैट, तो ये समथिंग लो बट नॉट वेरी लो, और ये उससे कुछ ज्यादा है। आप आगे देखिए आयनिक सॉलिड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड रहता है यहाँ पे, अट्रैक्शन, जैसे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड था। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आयनिक बॉन्ड इज समथिंग स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। वो तो एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ये तो आयनिक बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, तो समथिंग स्ट्रॉन्गर रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और ये हार्ड है। इंसुलेटर्स इन सॉलिड, बिकॉज इनके आयंस मूव नहीं कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में, बट एक्वियस और मोल्टन स्टेट में आयंस मूव कर सकते
इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई। आयनिक सॉलिड्स का मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक बॉन्डिंग रहेगी, क्या रहेगी, और ये आयरन कॉपर एग्जांपल देख सकते हैं, हार्ड रहते हैं, ये भी कंडक्टर रहेंगे ये, और हाई मेल्टिंग पॉइंट्स रहेगा। यहाँ पे आप कोवेलेंट बॉन्डिंग मिलेगी, कोवेलेंट नेटवर्क कहते हैं, नेम सजेस्ट अबाउट इट। सम एग्जांपल्स आप इजी तरह से इजीली देख सकते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट का तो याद ही होगा आपको, हार्ड और सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड फॉर डायमंड एंड सॉफ्ट फॉर ग्रेफाइट। इंसुलेटर्स रहते हैं ये, और वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। बट एक एक्सेप्शन है इसमें इंसुलेटर के साथ ही, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नाउ सम प्रॉब्लम, अभी जो आपने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड देन टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है। एक देख लीजिए, सॉलिड ए is a very hard electrical insulator. First, see the properties here. Very hard electrical insulator. Hard भी है और electrical insulator in solid as well as in molten state. Electrical insulator in solid as well as in molten state मीन्स आयनिक वाला तो हो नहीं सकता है और मेटलिक वाला भी नहीं हो सकता। क्लियर हो गया यहाँ से? अभी दो बच रहे हैं आपके पास, फर्स्ट वन मॉलिक्यूलर एंड सेकेंड वन नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। लेकिन ये वेरी हार्ड मेल्टिंग पॉइंट बता रहा, ठीक है, मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, मीन्स जो आप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे, बिकॉज दे मेल्ट वेरी एट वेरी लो टेम्परेचर। सो वो नहीं हो सकता, तो अब कौन सा बच गया? आप क्लियरली आंसर दे सकते हैं, सबको आंसर मिल गया होगा शायद, और इसका आंसर हो गया कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। It means solid A is covalent network solid. Another ionic solids conduct electricity in molten state but not in solid state. क्या रीजन हो सकता है? आप देंगे जवाब, थोड़ा सा एक आधे मिनट का टाइम है, रीजन इसका क्लियर हो गया होगा शायद। सॉलिड और मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करते हैं, बट मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसके पीछे क्या रीजन? मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो चीजें चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या आयंस फ्री होने चाहिए दैट कैन मूव, और मोबिलिटी होनी चाहिए। बट ये सॉलिड स्टेट में मोबिलिटी नहीं है, आयंस तो है, और एक्वियस स्टेट और मोल्टन स्टेट में आयंस कैन मूव। दिस वन इज द आंसर। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स? मेलेबल एंड डक्टाइल। अब ये तो और क्लियर हो गया आंसर, मेलेबल डक्टाइल जैसे ही आया तो आंसर आपका सीधा हो जाएगा, मेटल्स, और कोई है ही नहीं, और वो ऑलवेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। Thank you all for your consistent support and motivation. The reason behind such creation, in spite of so many problems and lack of resources, are only you. Otherwise, I was learning and trying for these videos from last 2 years, but I didn't prepare any. Thanks once again. Stay home, stay safe, and thanks to Corona fighters. Thank you all.